Students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhabwa, and again I am here with a new lesson. So here our next lesson, lesson 8, freeze zone. Now what is freeze zone? As you can see here, this north portion and south portion. This portion is known as freeze zones. Now in this lesson we are going to learn about freeze zone. Freeze zone means the area which is covered by ice. This is known as freeze zone. Freeze zone is also known as polar zone. So we have already learned about the equator region, the temperate grassland and the desert of the world. Now we will learn about the coldest region on the earth, the freeze zone. Now in this lesson we are going to learn about the freeze zone. We know that the freeze zone receives slanting rays of the sun, hence it remains covered with ice throughout the year. Means जो as we can see here on the screen, जैसे जो अर्थ है, जो सन की लाइट आती है वो स्लैंटिंग में आती है. स्लैंटिंग मीन्स तिरछी आती है, तो जिससे ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, नॉर्थ पोर्शन एंड साउथ पोर्शन होता है, इस पे हमेशा स्ट्रेट लाइट नहीं आती है सन की. इस वजह से ये रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए इस रीजन पे आइस देखने को मिलती है. द नॉर्थ फ्रीज जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, that is between 66.5 degree north and 90 degree north latitude. Now this is the location of north freeze zone. Yeah, it is. And south freeze zone is located between the Arctic circle and the southern pole, that is between 66.5 degree south and 90 degree south latitude. Now here it is south side, so it is the location of south freeze zone. Together, the two freeze zones cover 8.24% of the Earth's surface. जो दोनों नॉर्थ फ्रीज जोन एंड साउथ फ्रीज जोन टुगेदर दे कवर 8.24% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पूरे अर्थ का 8.24% कवर करता है. ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थर्न अलास्का एंड नॉर्थर्न Scandinavian, which includes Norway, Sweden, Finland, Iceland and northern Siberia and in Russia are located in the northern freeze zone. These are the popular places in the northern freeze zone. Located in the southern freeze zone, the frozen continent of Antarctica is the coldest region of the world and it completely uninhabited by people. मीन्स जो ये एरिया होता है, ये पूरा एरिया हमेशा ही ये आइस से कवर होता है और यहाँ पे अनइनहेबिटेड बाय पीपल मीन्स जो लोग हैं वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं. परमानेंट वहाँ पे कोई भी लोग रहने को या देखने को नहीं मिलते हैं. क्लाइमेट, नाउ विच काइंड ऑफ क्लाइमेट वी कैन फाइंड ओवर देयर. सो लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर मीन्स ये जो इक्वेटर से है बहुत ज्यादा दूर होता है. द फ्रीज जोन गेट्स लेस इंटेंस सन रे, तो ये क्या होता है, इस पे लेस सन रे पड़ती है. जो सन रे होती है, जो सन की लाइट होती है वो कम जाती है. विच आर सेपरेट ओवर अ वाइड एरियाज, जो स्लैंटली जाती है मीन्स तिरछी जाती है, जिससे इस पे बहुत फैलाव में जाती है. इस कारण से इस पे प्रॉपर सनलाइट नहीं जा पाती, इसके लिए ये कोल्ड होता है. These regions are covered with glacier and a thick layer of ice called the ice cap. Means ये जो पोर्शन होता है इसमें हमेशा ही आइस होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं द आइस कैप. द क्लाइमेट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. पूरे ईयर इस पे क्लाइमेट कैसा होता है, हमेशा रिमेन्स वेरी कोल्ड, पूरा टाइम ये बहुत ज्यादा ठंडा ही होता है. द अर्थ's tilt causes the sun to rise and set only once in a year in the areas around the poles. जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पे क्या होता है, ये टिल्ट मीन्स जो अर्थ है वो बेंड है,
तो बेंड होने की वजह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे सन रे ईयर में एक ही बार पहुंचती है। In these areas during winter, there is continuous darkness and continuous daylight during summer. Means जो ड्यूरिंग विंटर, जो विंटर सीजन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस डार्कनेस, यहाँ पे पूरा टाइम अंधेरा रहता है। एंड कंटिन्यूस डे लाइट ड्यूरिंग समर, मीन्स जो समर का सीजन होता है उसमें कंटिन्यूस डे लाइट, जो डे लाइट होती है वो हमेशा यहाँ पे समर सीजन में देखने को मिलती है। Vegetation and wildlife. Now vegetation, which kind of plants, and wildlife, which kinds of animals we can see over there. The freeze zones have sparse means rare vegetation because of the extreme cold. वहाँ पे extreme cold मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा rare vegetation मिलते हैं, मतलब बहुत कम ये वेजिटेशन वहाँ पे पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज, ये बहुत कम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। द एरिया हैज टुंड्रा वेजिटेशन एज द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। जो वहाँ पे पूरा टाइम वहाँ पे आइस होती है, तो वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स रहते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन। दिस इज नोन एज टुंड्रा वेजिटेशन। हियर इज द पिक्चर ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। ड्यूरिंग द समर मंथ्स व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जैसे जैसे समर आती है तो जो स्नो होती है, जो आइस होती है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है। अ फ्यू फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं। श्रब्स बियरिंग बेरीज, जो बेरीज होती है। मोसेस, लिंचेस एंड ग्रासेस कैन बी सीन, जो अलग अलग टाइप की ग्रासेस एंड हमको वहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती है। ड्रॉ विलो इज द ओनली ट्री दैट ग्रो इन द कोल्ड क्लाइमेट। ये क्या है, ड्वार्फ विलो है ना, ये जो ओनली ट्री है ये ही सिर्फ उस रीजन में देखने को मिलता है। ये इज द पिक्चर ऑफ ड्वार्फ विलो। कंडीशंस इन दिस रीजन्स, सॉरी, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं वहां पे इससे जो प्लांट्स वगैरह को ईट करके उनका जो पोषण वो लेते हैं, वो इस ट्री से वो उनका भोजन इनको मिलता है। वाइल्ड लाइफ, नाउ विच काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स है वो किस टाइप के मिलते हैं वहां पे। द एनिमल्स दैट आर नॉर्मली फाउंड इन दिस एरियाज आर वॉल्व्स, फॉक्सेस, वॉल्व्स, स्क्वेरल्स, स्नोशू हेयर, मस्क ऑस्क, एरमाइन एंड रेंडियर। रेंडियर नोन एज कैरिबो इन नॉर्थ अमेरिका। जो ये कैरिबो होते हैं, इनको कैरिबो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे ये बड़े बड़े कार्ट्स वगैरह होते हैं, उनको इनके पीछे बांध के और इनसे खींचते हैं ये, तो ये खींच के ले जाते हैं, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं ये सामान को। मोस्ट एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ फर कवरिंग देयर बॉडीज एज इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव द बिटर कोल्ड। मीन्स अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए कुछ तो इनमें खास होना चाहिए। तो इनमें क्या होता है, इनके जो फर, इनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा फेट होते हैं। इसकी वजह से ये कोल्ड सीजन में सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे अच्छे फिर भी रह पाते हैं। ड्यूरिंग समर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स कैन ऑल्सो बी सीन हियर। अभी जो समर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, बर्ड्स, जो चिड़िया वगैरह होते हैं, वो भी समर सीजन में देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग विंटर सम एनिमल्स आइदर बिकम डोमिनेंट और माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस। मीन्स अभी जैसे जैसे विंटर आती है, जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो ये क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट मीन्स थोड़ी कुछ टाइम के लिए, जब तक वहाँ विंटर है वहाँ से दूसरी प्लेस में मूव कर जाते हैं। और जैसे विंटर खत्म होती है, समर सीजन स्टार्ट होता है, तो वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। रेंडियर आर हर्डेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल इन दिस आर्कटिक एरियाज। मीन्स जो ये रेंडियर एनिमल है, इनको क्या करते हैं लोग, हर्डेड मीन्स इनको पालते हैं और इन्हीं की हेल्प से ट्रांसपोर्ट और जो भी इनका पोषण होता है वो इन्हीं की हेल्प से होता है। The Lapes, a group of people from North Scandinavia, use them for transportation. Means जो ये लोग होते थे यहाँ के नॉर्थ स्कैंडिनेविया के, ये क्या करते हैं, जैसे ये रेंडियर है, इनकी हेल्प से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस को
जाने के लिए यूज करते हैं, सामान एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स सच एज आर्कटिक फॉक्स एंड एयरमाइन्स हैव वाइट फर ड्यूरिंग विंटर सीजन। अभी जो विंटर सीजन में होता है ना, तो इनके फर, जो बाल वगैरह, जो इनकी स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, वाइट। एंड दिस कलर चेंजेस टू ब्राउन और ग्रे ड्यूरिंग द समर सीजन। जैसे समर सीजन होता है इनकी स्किन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, कौन से कलर में, ब्राउन एंड ग्रे कलर में। Birds such as snowy owls, here is the picture of snowy owls, Arctic terns, here is the picture of Arctic terns, and penguins. Penguins can be seen in the freeze zone. This kind of birds can be seen in the freeze zone. The seas are full of fishes. फिश, जो अलग अलग टाइप की फिश होती है वो बहुत सारी वहां पे अवेलेबल होती है। सील्स, here is the picture of seals, whales and walruses. Walruses, what is walruses? Here is the picture of, here is the picture of walruses. This is known as walruses. This kind of marine life means जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। Life in the freeze zone. Life for the people in the bitterly cold freeze zone is very difficult. अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ की लाइफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है सर्वाइव करने के लिए। Most of them are nomadic hunter by profession. जैसे कि as we can see here on the screen the picture of nomadic tribes who live in the freeze zone. They hunt animals such as walruses and seals with the help of harpoons and rifles. जो ये क्या करते हैं, यहाँ हंट करते हैं किसका, walruses and seals का, जिससे हंट करने के बाद इनको फूड मिलता है। फिशिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन दिस एरिया। फिशिंग तो जैसे कि आइस लेयर होती है, जो आइस पानी नीचे पानी होता है और ऊपर आइस जम जाती है, तो क्या करते हैं, आइस को कट करके और वहां पे फिशिंग करते हैं। तो ये मेन ऑक्यूपेशन है वहां का। Some of the tribes living in the freeze zone. Now we are going to study about some tribes which we can see here in this freeze zone. Some of the tribes living in the freeze zone includes Yakuts. Here is the picture of Yakuts, Samoyeds, Chukchis in Siberia, Aleuts in Alaska in the USA, Inuits in Greenland, and the Lapps in the North Scandinavian. Here is the picture of this kind of tribes which live in freeze zone. This kind of people can be seen in the freeze zone. Previously, people depends on sledge pulled by reindeer or wolf-like dogs called huskies. Means जो पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो काय का यूज करते थे, स्लेज का। स्लेज पुल्ड मीन्स जो एक स्लेज होता था उसको पुल करते थे, काय से, रेंडियर। हियर इज द पिक्चर ऑफ स्लेज पुल। हियर विद द हेल्प ऑफ रेंडियर they are moving from one place to another, and wolf like dogs called huskies. Here is the picture of wolves. इनकी हेल्प से भी ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने के लिए इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। बट मोटराइज स्लेज एंड मोटराइज बोर्ड आर ऑल्सो यूज दिस डेज। और अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे मोटराइज जो मशीन से चलती है वो यहाँ पे मशीन्स की हेल्प से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए इन मशीन्स का यूज करते हैं। लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड। नाउ जो लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड, यहाँ जो एज वी कैन सी हियर द फ्रीज जोन, यहाँ पे जो लैंड पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। हियर इज द Greenland, which is a largest island in the world. It is located completely within the freeze zone. ये पूरा क्या काय में लोकेटेड है, फ्रीज जोन में। कवरिंग एंड एरिया ऑफ अबाउट 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो कितना पोर्शन कवर करता है, 21.5 लाख
square kilometer. This portion covers 21.5 lakh square kilometer. Greenland is separated from northern Canada. Now Greenland is separated from Canada by what? By the Baffin Bay. Here is Baffin Bay. By Baffin Bay it is separating from Canada. And the Devas Strait. Here is Devas Strait, which is separating North America and Greenland. Nuuk is the capital of Greenland. Now what is the capital of Greenland? So Nuuk is the capital of Greenland. The climate of Greenland is cold throughout the year. यहाँ पे ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा होता है? हमेशा कोल्ड होता है यहाँ पे. विंटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी स्नोफॉल. हैवी स्नोफॉल मीन्स जब विंटर होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है. कोल्ड एंड चिली विंड्स एंड लो टेम्परेचर्स दैट रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जो वो पॉइंट होता है जिसमें बर्फ जमने लग जाती है. तो पूरा टाइम यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है? फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द आइसलैंड इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइस. जो ये ग्रीनलैंड है ये 80% काई से कवर है? स्नो से ही कवर रहता है. In summer, very little ice melt and only a few plants like moss, lichens, grasses and bushes grow here. अभी क्या समर टाइम पे जैसे जैसे आइस थोड़ी बहुत मेल्ट होती है तो वहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. Animals like reindeer, polar bear, musk ox and huskies can be found. Now, here is the picture of reindeer, polar bear, musk ox and huskies. This type of animals can be seen in this Greenland. All animals have thick fur to protect them from the extreme cold. बहुत ज़्यादा ठंडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास क्या होता है? थिक फेयर. जो इनकी थिक फर, जो इनकी स्किन और जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेट होते हैं, मोटे होते हैं, तो इससे ये वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं. The Inuits are the original inhabitants of Greenland. जो Inuits लोग होते हैं वो ओरिजिनल वहाँ के हैबिटेंट होते हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले वहीं के होते हैं ये. Inuits also referred to as Eskimos came to Greenland from North America almost 1,000 years ago. Means 1,000 years ago ये ग्रीनलैंड में कहाँ से रहने आए थे? नॉर्थ अमेरिका से ये यहाँ पे रहने के लिए आए थे 1000 years ago, हजारों साल पहले. They wear thick jackets known as packers. Means जो ये जैकेट पहनते हैं इनको पैकेज बोलते हैं. The Inuits people were known to have built snow houses called igloos. अभी ये क्या पहले रहने के लिए काय का यूज करते थे? इग्लूस का, जो आइस से बनाते हैं. ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ्स, जो हार्श विंटर मंथ बहुत ज्यादा जब ठंडी होती थी तो ये इग्लूस में रहते थे. एंड स्किन टेंट्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जो समर मंथ्स रहते हैं वहां पे स्किन टेंट्स का यूज करते थे. Today houses in Greenland are made up of wood and stone. अभी जो घर बन गए हैं वहाँ पे तो वो किस टाइप के बने हैं? wood and stone. जो लकड़ी वगैरह होती है, जो पत्थर वगैरह होता है, उनकी हेल्प से वहाँ के अभी घर बनने लग गए हैं. The major occupation of the people is hunting and fishing. Hunting means जो एनिमल्स को वो हंट करके, और फिशिंग करके मछली पकड़ के उनका मेन ऑक्यूपेशन, उनको बेच के या कुछ भी करके मनी अर्न करते हैं. लॉन्ग नैरो बोट्स आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हियर इज द पिक्चर ऑफ नैरो बोट. नैरो बोट जो होती है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान ले जाने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है वहां पे. Kiosk are also used to hunt sea animals. Now Kiosk is also एक टाइप के ट्राइब है जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं? हंट सी एनिमल्स. जो सी एनिमल्स, जो समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं. फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज अ लार्ज
population of Inuits have moved to bigger towns and cities in recent years. अभी के years में क्या हुआ है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी के लिए क्या एक प्लेस से बड़ी जो सिटीज वगैरह टाउन्स वगैरह वहाँ पे ये मूव कर गए हैं. So here we have completed our lesson 8. So at your home study well and have a good day. Thank you.